Welcome friends to the Client Solotech YouTube channel. This video is about how you can improve your typing skill, how to get better at typing. Type कैसे करें जल्दी और fast कैसे type करें, how you can improve your typing skill, and what are those techniques that can help you to improve your computer keyboard typing skill. So this video is all about that. So before I share with you some of the most powerful techniques that I have used so far to teach and also to type on my own. It's very important that you are following the top 3 typing lessons that I have already shared in this channel, and please find the links in description. So how you can improve your typing skills? So first you have to practice the basic typing lesson ASDF semicolon LKJ. You have to type that 1,000 times. You can say that thousands words, and each day you have to set minimum time to practice typing, such as you have to type minimum 1 hour each day, one typing lesson, and in second day then try second typing lesson, in third day try third typing lesson. These are very important 3 typing lesson, and once that's done you practiced and you don't have to think, that don't have to आपको देखना नहीं पड़े कि कहाँ पर कौन सा वर्ड है, कीबोर्ड में ना देखना पड़े. इसके लिए जरूरी है कि आपको बिना आप उसकी प्रैक्टिस कर ले, ताकि जब आप ए टाइप करें, जे टाइप करें, ठीक है, सेमीकोलन फुल स्टॉप टाइप करें, एंटर टाइप करें, प्रेस करें, तो आपको कीबोर्ड देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. आपकी टाइपिंग की स्किल बढ़ेगी तभी जब आप कंप्यूटर कीबोर्ड को बिना देखे टाइप करेंगे. और मैंने बताया है वीडियो में, आप देखें उसमें, तो प्रैक्टिस में आपको मालूम हो जाएगा. आप लोगों ने देखा भी होगा, एंड that video is also getting very good response from the students or those learning. So that's why I created this video especially to take those students to the next level, from 20 words per minute to 40 word per minute, and then 40 word per minute to 60 word per minute. Last time when I checked my typing speed, it was around 60 word per minute, and you can say that with quality it's a 50 word per minute, and I just happy with that. 50 word per minute is enough. But if you type with 40 word per minute, that's also good, and it will help you to for government typing test or private typing test or basic typing editing works in cyber cafes and various offices. So it's a very important skill. So the first tip is that practice your basic typing lesson as best as possible. Now once that done, then you have to practice all the alphabets and the shift button with shift space, and these buttons you also have to practice. ये भी आपको practice करने पड़ेंगे. जैसे the quick brown fox jumps over the lazy dog, ये लाइन आप बार बार टाइप करें, इसको कम से कम 1000 बार इसको टाइप करें. जब ये सारी चीजें हो जाएगी तो अब क्या है कि आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है, हो सकता है पहले 5 7 हो, 10 हो, अब वो 20-25 हो जाएगी. जब आपकी टाइपिंग स्पीड 25 और 20 और 25 हो जाएगी, उस टाइम आपको एक प्रॉब्लम आएगी कि वो उतने लेवल तक तो आप कर ही पा रहे हैं, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, 20 और 25 से आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो उसके लिए जो मैं बताने जा रहा हूं आपको टेक्निक, से आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगी. सबसे पहले आप एक काम करें कि नोटिस करें कि आपको कौन कौन से लेटर में प्रॉब्लम आ रही है, कौन कौन से वर्ड टाइप करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जब टाइप करते हैं तो आपको ये कौन सी की में प्रॉब्लम आ रही है, ये जे में प्रॉब्लम आ रही है, यू में प्रॉब्लम आ रही है. इस पूरे कीबोर्ड में कौन से लेटर आपका स्लो टाइप हो रहा है, ये आपको जरूर देखना पड़ेगा. कहां पर आप स्लो, तो होगा क्या कि आप उससे रिलेटेड एक लेसन क्रिएट कर लीजिए. मान लीजिए आपका जो अल्फाबेट है, जो आपका की है, मान लीजिए आपको यू में प्रॉब्लम आ रही है, यू आपसे स्लो टाइप हो रहा है, तो यू का एक लेसन बनाइए. जैसे यू के साथ आप लेसन बनाइए UYJ, एंड साथ में दूसरे हैंड से आप बना दीजिए उसमें GF और R. तो इस तरह से लेसन बनाइए, उन अपने आप उन स्मॉल
अल्फाबेट्स के, उन कीज के जो आप जिनमें आपको टाइम लग रहा है टाइप करने में। तो होगा क्या कि जब छोटे छोटे लेसन टाइप करेंगे आप, जैसे यू जे आई, एफ जे एल, जहां पे भी आपको जिन भी अल्फाबेट में दिक्कत है, तो एफ जे एल जब आप बार बार टाइप करेंगे देन इट इट मेक्स यू परफेक्ट। और इससे क्या होगा कि आपकी ओवरऑल जो स्पीड है उसमें इंप्रूवमेंट होएगी। सो ये एक मेरा बेसिक आइडिया था आपके लिए, जो एक नंबर एक टिप था। द सेकंड इज कि होता क्या है कि स्मॉल वर्ड होंगे, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है हाउ टू गेट बेटर एट टाइपिंग। सो हाउ टू गेट बेटर एट टाइपिंग, हाउ HOW, ये आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो चुका होगा क्योंकि ये एक स्मॉल वर्ड है। सो यू टाइप्ड इट फास्ट। बट जैसे ही कोई बड़ा वर्ड आता है, कोई लॉन्ग लंबा वर्ड आता है जिसमें 3 से ज्यादा अल्फाबेट्स है, फॉर एग्जांपल ओबीडियंटली, इंडिपेंडेंटली, सिक्वेंटली, अनफॉर्चुनेटली एंड सरप्राइजिंगली, these types of and many other, you just have to open your dictionary and then find out the difficult words. What you have to do each day, practice 10 words, 10 difficult word, select it from the dictionary, whatever dictionary that you are using, select any word. For example, I am seeing that here millennial. So millennial looks difficult because there are so many time, 3 time I is used and 2 time L is used, and so it can be tough or it can be difficult for a beginner or intermediate level skilled typist or any student. So select 10 words each day and note it down in your notepad. इस तरह का एक नोटपैड लीजिए, उस नोटपैड में डेली वहां पर आपने आप लिखिए, डिक्शनरी से सिलेक्ट करिए। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं या कहीं भी, तो वो 10 वर्ड सिलेक्ट कर लो जो डिफिकल्ट है, लंबे हैं, उनको वहां पर बार बार प्रैक्टिस करो। सो होगा क्या कि आपको बड़े वर्ड में भी अब आपकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी। सो ये एक आपको हॉबी क्या, इसको आप प्रैक्टिस बोल सकते हो। और हॉबी में इसलिए कह दिया क्योंकि अगर आप 10 वर्ड हर रोज इंग्लिश के डिक्शनरी से उठा के प्रैक्टिस करेंगे अपने टाइपिंग स्किल के लिए, तो आप देख लीजिए कि आपके महीने में कितने वर्ड्स आपको इंग्लिश के आ जाएंगे, जिससे आपकी इंग्लिश वोकेबलरी और इंग्लिश लैंग्वेज की वोकेबलरी भी इंप्रूव हो पाएगी। सो आई थिंक इट्स सो मच बेनिफिशियल टिप फॉर यू। द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज not only practice from the what you have written, but also practice from visual uh, banners or pictures or videos. What I mean, for example, you are running a video in on YouTube, or a movie is running in your TV, and in the below the screen you are seeing that the script is running in English. So what is going there in the script? Try to type that fast, or watch a new channel, and in the new channel banners, ribbon, the bottom here you can see the ribbon that is going a marquee type, a slider type where news is coming and flashing. What you have to do before that news flash to another news, transition into another word, another sentence or another news, you have to type that news fast in your computer. So practice in front of TV, in front of videos, and type from that. Again, type from the next tip, type from the newspaper. What do I mean newspaper? Select any paragraph from here to where 1000 word paragraph, 500 words paragraph, and then practice to type that, in which you will get new words to type. The next tip is, if you are preparing for the test or government typing test, और आप टाइपिंग की जॉब के लिए या टाइपिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो जिस भी टेस्ट की वो तैयारी है, आप उस डिपार्टमेंट का या उस गवर्नमेंट जो भाषा है, जो सरकारी भाषा है, उस भाषा के जो इंग्लिश वर्ड है उन पे आप प्रैक्टिस करें, ताकि वो आपको ना केवल आपको बोलने, उनका उच्चारण करना आए, बल्कि आपको वो नजर भी आए।
क्योंकि अगर आप खाली टाइपिंग ट्यूटर से टाइप करेंगे तो होगा क्या कि जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा तो वो तो या तो आपको पेपर दे दिया जाएगा, किसी को स्क्रीन से टाइप करने को दे दिया जाएगा, ये रहेगा। तो वहां से भी टाइप करें, उस वोकेबलरी को फॉलो करें, उस वोकेबलरी के जो वर्ड्स है उसको नोट करें, जो सरकारी भाषा में उपयोग होते हैं जो शब्द, उनका आप इसको प्रैक्टिस करें। द नेक्स्ट टिप इज है क्या है कि आप कोई ऑडियो क्लिप लगा दीजिए, ऑडियो कोई पॉडकास्ट प्ले कर दीजिए अपने फोन में, या कोई स्टोरी, इंग्लिश स्टोरी है उसको आप सुनना शुरू कर दीजिए, हेडफोन लगा दो कान में, ठीक है। उसके बाद जो वो स्टोरी बोल रहे हैं पर्सन, जो भी नरेटर है, देन यू स्टार्ट टाइपिंग दैट, व्हाट आर यू लिसनिंग, यू हैव टू टाइप। सो मैंने क्या बताया आपको, आंखों से देख के टाइप करना, सुन के टाइप करना, उधर वीडियो में कुछ चला है वहां से टाइप करना, वो जो टाइपिंग ट्यूटर या टाइपिंग टेस्ट आप ऑनलाइन ऑफलाइन दे रहे हैं वहां से उसको प्रैक्टिस करना, डिफिकल्ट वर्ड्स है उनको प्रैक्टिस करना, जिन कीज में दिक्कत आ रही है उनसे रिलेटेड टाइपिंग लेसन बनाना, और रोजाना टाइपिंग के लिए 1 घंटा 2 घंटा देना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको जो आगे बता रहा हूं वो भी आप ध्यान से सुने। अभी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जहां पर मैंने ये सारे टिप्स आपको शेयर किए हैं, कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, और मैंने स्पेशल टाइपिंग लेसन भी वहां पे बनाए हैं जो आप देख सकते हैं। सो होगा क्या कि अब आपने क्या करना है कि अगर आपने ये कर लिया, अगर आपने ये कर लिया तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट वर्क है, ये मैं आर्टिकल यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, यहां से अभी आप देख नहीं पाएंगे बट व्हाटएवर। सो नेक्स्ट क्या है, ऐसे लोगों को देखें जो टाइप कर रहे हो, यूट्यूब पे देखें, उनकी टेक्निक्स देखें, किस स्पीड से वो टाइप कर रहे हैं, उनका जो हाथ है कीबोर्ड पे वो कितना ऊपर है, आपका हाथ बिल्कुल कीज इसके ऊपर है, कीज के ऊपर है या थोड़ा सा हवा में है। अगर थोड़ा सा वो कीबोर्ड से स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है ना बच्चे का हाथ बिठाने के लिए, कि उसको कीज के साथ उसको हाथ उस पर रखाना पड़ता है, यानी कि उस पर बैठाना पड़ता है, क्योंकि उसको फिर कीज याद हो जाएगी। लेकिन जब थोड़ा आपको जो पता लग जाता है तो उसके बाद ना वो नीचे से दूसरे की पे उठाना थोड़ा टफ होता है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। इसको थोड़ा सा ऊपर आप हाथ को रखें और ये कोशिश करें कि जो आपकी फिंगर्स की मूवमेंट है, जो आपकी फिंगर्स की मूवमेंट्स है वो फास्ट हो, यानी कि वो ऐसे पोजीशन पे खड़ी हो, ऐसे पोजीशन पे स्टैंड हो जहां से वो कोई भी की या कोई भी बटन प्रेस कर सके। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सो ये भी आप करें और देखें दूसरे जो टाइपिंग कर रहा है, अच्छी टाइपिंग कर रहा है, बिना कीबोर्ड में देखकर टाइपिंग कर रहा है, तो उसको देखें, उससे इंस्पिरेशन ले, उनसे सीखे कि कैसे वो, कहाँ उनकी पोजीशन है, कैसे वो टाइप कर रहे हैं। और देखिए प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस कौन सी करनी है ये भी बहुत जरूरी है। तो जो मैंने आपको बताया इनकी आप धड़ल्ले से प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये 200% काम करेगी, आप एक बार करके देखना। और डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन जब आप डिफिकल्ट करेंगे तो तभी तो आपकी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव हो पाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप बुक्स से टाइप कर सकते हैं, और कोई टेक्निकल पॉइंट्स है, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर आपको डॉट्स, इन्वर्टेड कोमास, कोमा, ये चीजें टाइप करनी है तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको ब्रैकेट्स टाइप करना है, ब्रैकेट टाइप करना है, या कोई न्यूमेरिक की बीच में टाइप करते हुए टाइपिंग टेस्ट में कोई न्यूमेरिक फिगर बीच में आ जाती है, वो भी आपको टाइप करनी पड़ेगी, कोई ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, कहीं एंड साइन सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे, स्लैशेस यूज करने पड़ेंगे। तो इनकी भी साथ में प्रैक्टिस करें, क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए आप 40 की स्पीड से टाइप कर रहे हो, लेकिन नेक्स्ट वर्ड में आपके पास इन्वर्टेड कोमा आ जाएगा, अब आप लगेंगे देखने की इन्वर्टेड कोमा कौन सा है, इधर है, कौन सा टाइप करूं। तो ये ना प्रॉब्लम करता है, ये अभी है। अगला टिप है, जब, वैसे तो आर्टिकल का लिंक मैंने दिया है उसमें सारे नोटिस है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको ये हिंदी में बोल रहा हूँ, वो इंग्लिश में है। अब आपने एक खास जरूरी काम ये करना है कि जब आप टाइपिंग कर रहे हो ना, तब आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये पहला है, इसी के 2 भाग है, इसी टिप के। पहला भाग है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, 1 घंटे का जो आपने टाइम रखा, 20 मिनट का रख लीजिए। तो 20 मिनट का जो टाइपिंग का जो आपने टाइमिंग रखा है, उस टाइमिंग में आपका फोन, आपकी नोटिफिकेशन, कंप्यूटर से इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई फोन नहीं आना चाहिए, यानी कि ठीक है इमरजेंसी इट्स ओके, बट वो फोन आप साइलेंट रखें, साइड में रखें।
एंड फोकस, वर्ड्स को ना केवल टाइप करे बल्कि उनको पढ़े, उनको बोले, और अपनी आईज को यहां से इतना उनके साथ फैमिलियर बन जाइए कि जैसे ही आप कोई वर्ड देखे ना, आपको एकदम से माइंड में आ जाए और आपकी फिंगर्स एकदम से उसको टाइप कर ले। सेकंड मेथड है इसी प्रैक्टिस का, इससे आपका एक तो कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा और आपकी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव होगी। अब अगर मान लो आप किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं किसी जॉब के लिए, ये बहुत गोल्डन टिप है खासकर उनके लिए जो जिन्होंने कहीं टेस्ट देना है टाइपिंग का कोई जॉब के लिए। अब होता क्या है कि जब टाइपिंग इंस्टीट्यूट, टाइपिंग टेस्ट या एग्जाम हॉल में बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, 10 20 20 बच्चों को एक साथ एक हॉल में बिठाया जाता है और ज्यादा भी कई बार। होता क्या है कि सभी लोग उस टाइम उस सिचुएशन में स्ट्रेस में होते हैं, यानी कि वो कोई एक्साइटेड होते हैं, कोई स्ट्रेस में होते हैं, कोई बहुत अच्छा टाइप करते हैं, लेकिन उस दिन जाके उनकी वो टाइपिंग होती नहीं, उनसे उस दिन नहीं होती टाइप। वो उसका कई कारण है, नर्वसनेस हो जाती है, बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग, दे आर कंपीटिंग। सो प्रैक्टिस ही इस तरह से करनी है। मैं जो टिप्स दे रहा हूं ना, ये उस तरह की प्रैक्टिस है जो आपको एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव बनाएगी। सो ये जो टिप है ये इसमें गोल्डन है, जो आप ध्यान से समझना। जब इतना सब कुछ हो जाए, इतना आपको नर्वसनेस, या आपने पहले भी दिया हो, कभी आपको आइडिया हो कि नहीं मैं पहले भी टाइपिंग टेस्ट दिया लेकिन किसी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाया, 5 मिनट लेट हो गया, या 2 लाइनें रह गई टाइप करने को, 2 वर्ड से रह गया, अन्य कोई भी हो सकता है। ये आपने क्या करना है, क्योंकि वो सिचुएशन क्या है, नर्वस सिचुएशन क्या है, हाइपरटेंशनल, उस सिचुएशन में आपका फोकस होना इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं हूं आपकी जगह पर तो मेरे आई कैन ऑल्सो फील दैट, और आई कैन ऑल्सो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है, इट्स ओके। बट इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू बी calm and cool and focused when you are going for the exam। ज्यादा भी नहीं प्रेशर लेना है कि एग्जाम है, जस्ट नॉर्मल फ्री, ठीक है, आई विल डू माई बेस्ट, इफ इट्स डन डन, एल्स डोंट वरी। अब लेकिन करना क्या है, सिचुएशन को कूल फोकस्ड कैसे बनेंगे, जहां पर डिस्ट्रैक्शन है। अब क्या करना है, लैपटॉप कंप्यूटर आपका जहां है, या आपके घर में बच्चे होंगे, भाई बहन चाचा ताऊ इधर उधर जिसके जो भी है, उनको उस कमरे में ला दो, उनको खेलने दो, और आप उधर पैराग्राफ सिलेक्ट कर लो या वहां टेस्ट निकाल लो, ऑनलाइन कर लो, या जैसे भी है। अब उस, क्योंकि बच्चे खेलेंगे, रोएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, शोर होगा, इधर उधर से आवाजें आएगी। अब ये सिचुएशन क्या बन जाएगी, स्ट्रेसफुल, यानी कि सिचुएशन को क्रिएट करनी है, प्रैक्टिस में क्रिएट करनी है। जो सिचुएशन आप एग्जाम हॉल में फेस करने जाएंगे, वो सिचुएशन को पहले प्रैक्टिस में उसको बिल्ड करो, उसको एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ अपनी प्रैक्टिस में जहां पे वो कॉम्पिटिटिव हो। अगर आप बेड पे लेटे हुए, सोफे पे लेटे हुए और फिर लगे हुए टाइप करने, और फिर सोच रहे कि टाइपिंग इंप्रूव क्यों नहीं हो रही है, तो वो कैसे इंप्रूव होगी, बिकॉज या आप क्वालिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि आपको जब टाइपिंग हॉल में या टेस्ट देंगे तो वहां सोफे में नहीं कोई बिठाएगा, बेड में नहीं कोई बिठाएगा, या आपका फेवरेट कीबोर्ड या लैपटॉप वहां नहीं होगा, डिफरेंट एनवायरमेंट है। तो वो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट बिल्ड करना है, बच्चों को कुछ बोलना नहीं है, उनको देना है अपना खेलने, वो उस एनवायरमेंट को क्रिएट करेंगे। या ज्यादा गर्मी है, ज्यादा सर्दी है, बहुत ठंड पड़ रही है, बर्फ पड़ी है, ऐसी बर्फ की सिचुएशन में लोग हाथ हीटर पे या उसमें सेंक रहे हैं, बहुत ठंडी है, हाथ में पड़ी हुई है, उस सिचुएशन में भी टाइप करो, उस सिचुएशन में भी 2-2 घंटे प्रैक्टिस करो, जब सबसे ज्यादा ठंड पड़ी है, जब सबसे ज्यादा गर्मी है, पसीने छूट रहे हैं, फिर भी टाइप करें। इट्स कॉल्ड प्रैक्टिस। वो एनवायरनमेंट बिल्ड करना पड़ता है जो आपको एग्जाम में आएगा, या आपकी रियल जॉब में जो टेंशन आपको क्रिएट होगी वो आपको प्रैक्टिस में क्रिएट होगी। और ये जो ट्रेनिंग होता है, इसीलिए ये ट्रेनिंग ऑफलाइन ज्यादा कामयाब रहती है। टिप्स वगैरह शेयर की जा सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन आपके सामने जो मैं आपको आपके अनुसार जो आपको मैं टिप देता, मेरे को क्या मालूम कि आपको कहां पर क्या फॉल्ट आ रहा है। अगर तो आप कमेंट करके बता देंगे तो हो सकता है मैं अगले वीडियो में बता दूं, लेकिन अगर आप कोई बच्चा मेरे सामने टाइप कर रहा है तो मेरे को पता लगेगा ना कि वो कहां पर क्या मिस्टेक कर रहा है, उसकी कहाँ कमी हो रही है, क्या वो गलती है। वैसे आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन का फर्क रहता है ट्रेनिंग का।
बट वट एवर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो आप समझ गए कि वो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट बिल्ड करे घर में और फिर प्रैक्टिस करे। जो नेक्स्ट टिप है ये है कि अब आपने जब इतना कुछ हो गया, ये जब हो गया तो अब आपको क्या होगा कि आप बोलेंगे कि पीठ में दर्द हो गया, है ना, कमर में दर्द हो गया, हाथों में दर्द हो गया, एल्बोज में दर्द हो गया या शोल्डर्स में दर्द हो रहा है। तो होगा, पहले ही दिन 2 घंटे प्रैक्टिस नहीं करनी है। पहले दिन 20 मिनट कीजिए, दूसरे दिन 40 मिनट कीजिए, फिर 1 घंटा कीजिए, फिर 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, डिपेंड करता है, पर 2 घंटे काफी है। 1 घंटा भी बहुत है। अब 1 घंटा बहुत ज्यादा है, 20 मिनट हर रोज 2 महीने के लिए। आपकी स्पीड 40 ना हो जाए तो बोलना, और जो मैं टिप्स दे रहा हूं अगर वो फॉलो नहीं किए तो। अब जो मैं पॉइंट बताने वाला था वो ये है कि बैठकर तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे, जब आप थकावट फील करें, बोरिंग फील करें, तो खड़े हो जाइए। खड़े होकर एक डिफरेंट एंगल से अपनी फिंगर्स को यूज करो, डिफरेंट एंगल से उस पर प्रेशर डालें। आपका जो टेबल है जहां आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो ये रिलैक्स रहे, मतलब ओके रहे। लेकिन होता है कि टाइपिंग हॉल में वहां टेबल थोड़ा ऊंचा हो, आपने जो प्रैक्टिस की है वो अपने बराबरी के टेबल पे की है, क्योंकि वो वहां तो आपके साइज के हिसाब से तो टेबल नहीं बनाया है ना कंप्यूटर का। तो इसलिए मेरे बोलने का मतलब है कि अपने एंगल्स, अपने जो आपका जो ये चीजें होती है इनको स्ट्रांग बनाओ, अलग अलग एंगल से टाइप करो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी जो शोल्डर्स है, एल्बोज है, आपके जो हैंड्स है, फिंगर्स है, ये कम्पिटिटिव रहेगी। ये समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? तो ये बहुत जरूरी है ये करना। सो वीडियो शायद ज्यादा लंबा हो गया, मैं टिप्स देता ही जाऊंगा, और बाकी आप आर्टिकल में पढ़ ले, नीचे दिया है। बाकी जो 3 वीडियो है बेसिक टाइपिंग लेसन के वो भी नीचे दिए हैं, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप वो भी आप शेयर करें। और भी टिप्स है, बहुत से टिप्स है, जैसे मैंने आपको दिया कि बहुत सर्दी में भी आप टाइप करें ताकि आपकी फिंगर स्ट्रांग बने, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बने। गर्मी में टाइप करें। इसी प्रकार से आप ऐसी क्रिएटिव टेक्निक्स भी, अब मैं सारी नहीं बता अभी बोल पाऊंगा, बट वट एवर, इनको प्रैक्टिस कर लो, और इनसे अगर जो भी रिजल्ट आएगा, अब देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स आप लोग देते हैं। और अगर सीख रहे होंगे, मैं तो अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, अब आप अपनी ड्यूटी फॉलो करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो बोथ ऑफ अस एंड एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। और जो दिक्कत है कहीं तो उसको कमेंट में बता देना, सॉल्व हो जाएगी। फिर मैं हिंदी का भी अभी सीरीज शुरू करूंगा। अब देखते हैं आप लोग कैसा प्रैक्टिस करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, क्योंकि अभी ऐसा ही है जी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। डू इट, है ना, 1 आधा घंटा रोज डिसिप्लिन के साथ इसको करो, परसिस्टेंस कंसिस्टेंसी के साथ इसको करो, एंड 2-3 महीने तो चलो इतना टाइम देना भी चाहिए, इतने में हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ओके।